Welcome all of you for this maths lecture. So today we are going to start with the first chapter of class 9, chapter number 1, number system. So you can see that initially in every lecture we discuss about numbers. So this is our chapter number 1 for class 9, number system. In this chapter, what all things we will discuss? So let me write the content. हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो सारा कंटेंट मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ. सो द फर्स्ट टाइप वी विल सी इज different types of numbers. First point is different types of numbers. So in this point we are going to discuss total 8 types of numbers. Then second we will discuss the rational numbers. Actually, we have already covered rational numbers in our 8th standard. Here we are going to discuss revision type, the rational numbers. Third point, we will see uh, the irrational numbers introduction. Irrational numbers introduction. The next point we are going to see is real numbers and their decimal expansion. Point number 5, laws of indices and surds. Point number 6, we will discuss operations on irrational numbers. So I would request all the students to write these points in sequence and make proper notes. If you make the proper notes, you will have these notes in your notebook available, and anytime you can revise, because we are going to discuss each and every point in depth. Point number 7, rationalization. We will discuss the 3 types of rationalizations uh, in this. Next is point number 8, to find square root of irrational numbers. In this also we are going to discuss 3 formulae. The last point is representation of, point number 9, representation of irrational numbers on number line. So in this we will discuss the 2 types of representations. First is square root, spiral, and second is visualization method. So this is the content of this chapter number 1. So let us begin with the first point now, different types of numbers. Overall, we learn total 8 types of numbers in mathematics all throughout our classes, starting from first class to the 12th standard. All these 8 types of numbers, we play with all these 8 types of numbers, all of their operations, addition, subtraction, multiplication, division.
their comparison, their representation on number line, etc. So the first type is natural numbers. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। इनको काउंट करने के लिए यूज करते हैं। आपको पता ही है नेचुरल नंबर्स दे स्टार्ट फ्रॉम वन, सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। There are infinite natural numbers. Natural numbers are denoted by capital N. So we can say natural number capital N. Second type is whole numbers. The whole numbers are denoted by capital W. In them, the extra number zero is added, and all natural numbers together with zero are called as whole numbers. The third type is integers. Integers can be denoted by I or capital Z. In this we write all the whole numbers, जो ऊपर के नंबर से वो सारे लिखते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। टाइप नंबर 4 इज रैशनल नंबर्स। अभी दो इंटीजर के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q. सो कैपिटल Q word comes from the quotient. Why we write here quotient? Because rational numbers are in the form of P by Q, where P comma Q are integers and Q is non-zero. So all the integer upon integer format numbers. Of course, we don't take denominator 0, because if we take denominator 0, we will get answer as infinity. यहाँ पर जो infinity है ये actually very large number है, and infinity is not defined in maths. नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका वैल्यू हमें पता ही नहीं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये अगर आपको पूछा जाए तो इसका वैल्यू ही हमें पता नहीं है। सो देयरफॉर infinity is not defined, therefore we don't take denominator 0. अगर डिनोमिनेटर 0 लिया हमने, समझो 3/0 लिया, तो इसका आंसर infinity मतलब नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसीलिए हम ये नंबर डिस्कस ही नहीं करते मैथ्स में। यहाँ इंटीजर अपॉन इंटीजर लेने हैं, सो -3/2, 5/-4, 7/8, 0/7, 5, -8, etc. Now you can say 5, -8 do not have denominator, so we can write the denominator as 1. So these are all rational numbers. इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमने कंटेंट में लिखा है, दूसरा पॉइंट है हमारा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को हम डिटेल में रिवाइज करने वाले। ये ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में आपके पहले चैप्टर में हो चुके हैं। पांचवा टाइप रहता है इररेशनल नंबर्स। ये नंबर जो है, ये नंबर्स हम अभी 9th स्टैंडर्ड में बहुत इन डेप्थ और डिटेल में देखने वाले हैं। इररेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय Q डैश सिंबल, opposite of rational. Q means rational, Q dash means irrational. Irrational numbers cannot be represented in the form of P by Q form, where P comma Q are integers and Q is non-zero. So certain numbers, for example, under root of 3, 3.142 dot dot dot, these numbers we cannot represent in the form of P by Q, that is integer upon integer format. We cannot write them, therefore they are irrational numbers. Rational numbers को आप integer upon integer format में लिख सकते हैं, irrational को नहीं लिख सकते। The next type number 6 is real numbers. Real numbers are denoted by capital R, and they are combination of all rational and all irrational together. So all rational numbers and all irrational numbers together are called as real numbers. Next point, type number 7, real का opposite, non-real numbers, or we can also call them as imaginary numbers. Real का opposite imaginary, imaginary numbers. Imaginary numbers को हम I am ऐसे डिनोट कर सकते हैं।
जनरली इमेजिनरी नंबर्स का जो स्क्वायर होता है ये निगेटिव आता है, और इसका अपोजिट जो रियल नंबर्स होते हैं इनका जो स्क्वायर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स इज नॉन नेगेटिव, दिस वी नीड टू रिमेम्बर। आप कोई किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लो, 0 का स्क्वायर 0 आ रहा है, -2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 आ रहा है, तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। और इमेजिनरी नंबर्स अगर लेते हैं तो उनका स्क्वायर नेगेटिव आता है। इसमें कौन से एग्जांपल्स आते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ -25, स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट ऑफ -36 एक्सेट्रा। इनको आगे सॉल्व भी करते हैं हम। यहाँ -1 इंटू 25 लिखेंगे, फिर -1 अंडर रूट में -1 इंटू √25 सेपरेट किया। -√1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई। और 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 इंटू आई 5i, ऐसे लिखते हैं हम। दिस आई इज कॉल्ड एज आयोटा। आयोटा इट्स वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ -1, इसका ये वैल्यू फिक्स ही रहता है। एंड लास्ट टाइप ऑफ नंबर 8 इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनको हम स्मॉल जेड और कैपिटल सी, इन दोनों सिंबल से डिनोट करते हैं। इसमें सारे रियल नंबर्स और सारे नॉन रियल नंबर्स, इनको हम नॉन रियल मीन्स इमेजिनरी, तो इमेजिनरी और रियल इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी को आई एम से डिनोट करते हैं, तो इनको कंबाइन किया तो हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ नंबर्स वी डिस्कस इन मैथ्स। तो आपको ये 12वीं तक ये सारे नंबर्स हैं। इसमें से इस साल 9वीं में हम इरेशनल नंबर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रैशनल नंबर का हम रिवीजन ले रहे हैं। और जो रियल नंबर्स है उसका थोड़ा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम इरेशनल नंबर सबसे ज्यादा लेने वाले हैं इस साल 9th स्टैंडर्ड में। अभी इन सारे नंबर्स को अगर हमें प्रॉपर एक डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। इसमें अगर एक्स्ट्रा 0 डाल दिया तो हमें मिलते हैं ये सारे होल नंबर्स, सेकंड सर्कल। द थर्ड सर्कल विल हैव नेगेटिव नंबर्स एक्स्ट्रा। ये नेगेटिव अगर एक्स्ट्रा -1 -2 -3 लिए तो हमें मिलते हैं इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स हो गए। इसमें अगर हमने फ्रैक्शंस वाले नंबर ऐड किए, पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस, तो ये बनते हैं रैशनल नंबर्स, कैपिटल क्यू। अगर अभी कैपिटल क्यू मतलब इनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा अगला टाइप है इरेशनल नंबर्स, q डैश। इनको हम p/q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, फॉर एग्जांपल √3, 3.14 डॉट 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 एक्सेट्रा। ये सारे स्क्वायर रूट में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ये हम थर्ड पॉइंट में देखने वाले हैं इरेशनल नंबर को डिटेल में। और फिर ये सारे रैशनल और इरेशनल दोनों को अगर कंबाइन किया तो दोनों मिलके बनते हैं रियल नंबर्स, कैपिटल आर। ऑल रैशनल प्लस और इरेशनल टुगेदर आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। अभी ये हो गए रियल नंबर्स। इसके साथ अगर हमने जोड़ दिए एक्स्ट्रा नॉन रियल नंबर्स, नॉन रियल बोलो या इनको इमेजिनरी बोलो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर्स आई एम से डिनोट करते हैं, जिनके स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज आते हैं, ऐसे √-25, √-6 एक्सेट्रा। ये रियल नंबर्स और ये नॉन रियल नंबर्स, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल रियल प्लस ऑल इमेजिनरी टुगेदर। ठीक है, जैसे इमेजिनरी में आपको बताया है कि इनका स्क्वायर लिया तो ये नेगेटिव आता है, लेकिन रियल नंबर का अगर हमने स्क्वायर लिया तो ये जो स्क्वायर है ये नॉन नेगेटिव आता है। नॉन नेगेटिव मतलब आपको पता होना चाहिए, नॉन नेगेटिव मीन्स 0 और पॉजिटिव। तो रियल नंबर का स्क्वायर 0 या पॉजिटिव आता है, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर कंपलसरी नेगेटिव ही आता है। जैसे यहाँ पर अगर हमने इमेजिनरी नंबर्स देख रहे हैं आपने कि √-25, इसका अगर स्क्वायर लिया तो आंसर -25 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल ये 8 टाइप के नंबर्स है: नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल, नॉन रियल और इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ये आप नोट्स अभी वीडियो पॉज करके पूरा लिख लो।
ठीक से। तो पहले ये 6 टाइप लिखने हैं आपको। इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स। उसके बाद नॉन रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और उसके बाद हमें ये फिगर ड्रॉ करना है। इससे आपको पूरा पूरा 8 नंबर्स का स्ट्रक्चर पता है। इसी को बोलते हैं पूरा नंबर सिस्टम। ठीक है, ये पहला पॉइंट अभी कंप्लीट हो गया। हमारे चैप्टर का जो कंटेंट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट है हमारा रैशनल नंबर्स एंड रिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, दैट वी विल कंटिन्यू। सो पॉइंट नंबर 2, रैशनल नंबर्स। इसको रिवीजन इसलिए बोला गया क्योंकि ये 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके बेसिस पर आपको एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर के ऊपर है। तो ये हमें सॉल्व भी करना है।